Good morning, everyone. My name is Dr. Ravneet Kaur. In the previous class, we have discussed about the theory of demand. What are the factors affecting your demand? Uh, what are the reasons due to which demand curve is negatively sloping? What are the exceptions to the law of demand? Okay, what is law of demand and what are its types? So all these topics we have covered in the previous class. So now today we are moving further with the next topic, which is extension and contraction in demand. Extension and contraction in demand. Now, what is the meaning of extension of demand? That other things remaining same, if due to price fall, the demand increases, it is called as extension in demand. कि सारे फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ओके और वो कांस्टेंट रहते हैं और जो है हमारी प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको हम एक्सटेंशन इन डिमांड बोलते हैं, ओके इसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, ओके आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन को हम इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं, ओके सपोज प्राइस हमारे पास गिवन है और डिमांड हमारे पास गिवन है. प्राइस falls from 5 to 3 and demand increases from 3 to 5. So if we draw the diagram like this, here it is x-axis and here it is y-axis. Here comes your price and here comes your quantity. Price 1, 2, 3, 4, 5. Quantity 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, if we look at the table, when the price is 5, your demand is 3. And when the price falls from 5 to 3, the demand increases from 3 to 5. If we join these points like this stands for DD. So this is your forward movement of demand curve, जिसको हम बोलते हैं extension of demand. This is your forward movement. So you are moving along the same demand curve. ठीक है, इस पॉइंट से A पॉइंट से आप B पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं. Okay, when your price is decreasing from 5 to 3, your demand is increasing from 3 to 5. So this is called as extension in demand. Second is contraction in demand. Contraction in demand. I am taking again example. Contraction extension का opposite हो जाएगा price and demand. Contraction means that price increases from 3 to 5. Suppose demand falls from 5 to 3. Okay, if we draw the diagram again, x-axis, y-axis, here comes your price, here comes your quantity demanded. Okay, the price is 1, 2, 3, 4, 5. And demand is 1, 2, 3, 4, 5. So when the price increases from 3 to 5, price is 3, our demand is 5. Like this. And when price is 5, our demand is decreasing. So you join these points. So this is your, you can say, reverse or backward movement, which is called as contraction in demand. This is your demand curve. Okay, when price increases from 3 to 5, demand falls from 5 to 3.
So this is called as your contraction in demand. Now next is increase and decrease in demand. थोड़ा सा फर्क होता है एक्सटेंशन और इंक्रीज और डिक्रीज में. क्या फर्क होता है कि इन डिमांड जो है इट चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस. जब डिमांड उन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है जो प्राइस के अलावा डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं अदर देन प्राइस जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड. Okay, so what is meaning of shift? That you are not moving on the same demand curve, rather you are moving from one demand curve to another. Okay, इसमें पहला है increase in demand कि क्या reasons हैं जिनकी वजह से demand जो है वो increase कर रही है. Increase in demand. Okay, इंक्रीज इन डिमांड को हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं, हम शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं. डिमांड तब बढ़ती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है. इफ योर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ओके, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तब भी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होता है फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, जब डिमांड फैशन, टेस्ट और हैबिट की वजह से चेंज होती है. ओके, इसके अलावा जब हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा प्राइस जो है वो नियर फ्यूचर में बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. ओके, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. अगर आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाते हैं तब भी आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जिनकी वजह से, ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है. अब इंक्रीज इन डिमांड जो है वो आगे दो तरह का होता है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स. सेम प्राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझने वाला है. सेम प्राइस मोर डिमांड. This is first, and second is more price, same demand. Okay, same price more demand, more price same demand. पहले हम बात करेंगे सेम प्राइस और मोर डिमांड की. नाम से ही क्लियर है कि प्राइस जो है वो हमारा सेम रहेगा और हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस. प्राइस, P स्टैंड फॉर प्राइस एंड D स्टैंड फॉर डिमांड. सपोज प्राइस सेम है, कांस्टेंट है और डिमांड जो है वो 3 से 5 हो गई. ओके, अब हम अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, x axis, y axis. Okay, we look at the diagram. Here comes your demand, here comes your price. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. When price is 3, your demand is also 3. So look at here, price is 3, demand is also 3. When price is 3, your demand is 5. So if this is the shape, it means you are shifting from one demand curve to another. How? Look at here. This is your demand curve, D, D. It shows when price is 3, your demand is also 3.
Okay, now when your price is same and your demand is increasing, you are shifting from this DD demand curve to D1D. आप DD से शिफ्ट होकर D1 कर्व पर आ गए। तो इसमें आपकी जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, राइटवर्ड मूवमेंट हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो सेम डिमांड कर्व पर नहीं हो रहा, आप एक डिमांड कर्व से दूसरे डिमांड कर्व की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेम प्राइस मोर डिमांड। Now, second is yours. Second था हमारा सेकेंड टाइप मोर प्राइस। मोर प्राइस सेम डिमांड। ओके, इसमें क्या होगा कि प्राइस जो है इंक्रीज कर जाएगा और डिमांड जो है वो सेम रहेगी। सपोज प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5 बट योर डिमांड इज कांस्टेंट एट 3। वी ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेबलिंग जरूर करनी है हमने डायग्राम में, कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम डायग्राम्स की बात करते हैं या डायग्राम्स की बनाते हैं तो हमें लेबलिंग प्रॉपर करनी होती है, उसी के नंबर होते हैं। प्राइसेस आप पूरा लिखिएगा इसको, प्राइस 1 2 3 4 5 एंड डिमांड 1 2 3 4 5। ओके, व्हेन योर प्राइस इज 3 योर डिमांड इज आल्सो 3। प्राइस इज 3 डिमांड इज आल्सो 3। When your price increases from 3 to 5 but your demand is constant at 3, यहाँ से प्राइस 3 से 5 आ गया, like this. Okay, so what happens that initially your demand curve was this DD and now you have shifted to D1 D1। ओके, इसमें भी आपकी जो है वो शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड ही है, राइटवर्ड शिफ्ट ही हो रही है, लेकिन फर्क क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं मोर प्राइस सेम डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज, ये था इंक्रीज इन डिमांड, इसके दो टाइप्स थे। ऐसे ही सेकंड है हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड। ओके, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है कि व्हेन योर डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिमांड डिक्रीज करती है? जो मैंने आपको इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेस बताए थे उनको हम ऑपोजिट कर देंगे कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तब डिमांड डिक्रीज कर जाती है, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज कर जाता है तब डिमांड डिक्रीज कर जाती है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तब डिमांड डिक्रीज कर जाती है। ओके, अगर आपको लगता है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि इन द नियर फ्यूचर योर प्राइस विल चेंज, ओके, इस प्राइस विल डिक्रीज, तब भी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। और अगर आपकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स जो है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तब भी आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाती है। तो ये कारण है जिनकी वजह से डिमांड डिक्रीज करती है। तो ये आगे दो तरह का होता है, ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज लेस प्राइस सेम डिमांड, and second is same price less demand। लेस प्राइस सेम डिमांड, सेम प्राइस लेस डिमांड। अब हम पहला करेंगे लेस प्राइस सेम डिमांड। ओके, लेस प्राइस मींस कि प्राइस कम हो रहा है और डिमांड जो है वो हमारी, उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखिए कैसे, प्राइस डिमांड, प्राइस आपका कम हो रहा है 5 से 3, ठीक है, और जो डिमांड है वो आपकी कांस्टेंट है। नाउ टू ड्रॉ द डायग्राम हियर, x axis y axis, ओके,
1, 2, 3, 4, 5. Here we are taking demand and here we are taking price. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, when your price is 5, your demand is 3. And when your price decreases from 5 to 3, your demand remains constant at 3. So this was your initial demand curve and this is your new demand curve. So here you are shifting from DD to D1, D1. Here, like this. So it is called as leftward or downward shift in the demand curve. शिफ्टिंग हो रही है, एक डिमांड कर्व से आप दूसरे डिमांड कर्व की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड है. तो ये होता है आपका लेस प्राइस सेम डिमांड. सेकंड है आपका सेम प्राइस लेस डिमांड. सेकंड टाइप सेम प्राइस एंड लेस डिमांड. ओके, सेम प्राइस लेस डिमांड मीन्स कि प्राइस आपका सेम रहेगा और डिमांड आपकी कम हो जाएगी. Price, demand. Price is 3 and demand decreases from 5 to 3. This is just a hypothetical example which I have taken. You can take n number of examples in the tabular form for explaining the data, for explaining the content of this topic. Okay, if you draw the diagram, x-axis, y-axis, 1, 2, 3, 4, 5. Here it is price and here it is demand. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. When price is 3, your demand is 5. And when your price is 3, your demand decreases from 5 to 3. Here. So you are shifting from here like this to here. DD to D1. DD to D1, D1. This is called as backward shift in the demand. So is it clear? There were two concepts, increase in demand and decrease in demand, जिसमें शिफ्टिंग होती है एक डिमांड कर्व से दूसरे की तरफ, और एक था एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसमें हम एक ही डिमांड कर्व की तरफ रहते हैं और उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है. नाउ next is difference between your extension and increase in demand. कि extension और demand में थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि extension in demand और increase in demand में क्या डिफरेंस है. extension in demand and increase in demand. Okay, extension क्या होता है, वो कब होता है? It occurs due to fall in price. Fall in price of your commodity. Okay, और increase कब होता है? It occurs due to factors other than प्राइस. जो जैसे मैंने आपको बताया, इनकम, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, चेंज इन फैशन टेस्ट हैबिट, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वो आ जाते हैं आपके इंक्रीज इन डिमांड. ये था पहला डिफरेंशिएशन. सेकेंड है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. जैसे मैंने बताया, इट ऑकर्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, कि एक ही डिमांड कर्व पर आप मूव करते हो, और जो आपका इंक्रीज इन डिमांड है, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. यू आर, DC स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व, तो यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिमांड कर्व टू अनदर. इसमें राइटवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है और बैकवर्ड शिफ्ट भी हो सकती है. ओके, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं.
कॉल इट एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको हम चेंज इन या ये कह सकते हैं शिफ्ट बोलते हैं. ओके, इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये है आपका डिफरेंस. इसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन में और डिक्रीज इन डिमांड में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. So this was all in your first chapter of theory of demand. Okay, now we are starting with the next very important chapter which is related to demand only, that is elasticity of demand. Elasticity of demand. अभी तक हमने जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी. लॉ ऑफ डिमांड वो होता है जो इनवर्स रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये जो है ये आपका जो है परसेंटेज चेंज बताता है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, स्ट्रेच करना. तो जो लॉ ऑफ डिमांड था वो कितना क्वांटिटी ऑफ चेंज आया है उसके ऊपर फोकस नहीं किया. लॉ ऑफ डिमांड में हमें सिर्फ इतना पता लगा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है एंड वाइस वर्सा. लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से जो है हमें जो है क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड का पता लगा. तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ओके, इट शोज your percentage change in quantity demanded percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price of commodity. ओके, ये इसका फॉर्मूला है. सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इस कॉन्सेप्ट को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल PED. तो हम ये कह सकते हैं कि PED इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस का सिंबल. ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? इट कैलकुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो ये इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस रेशियो की फॉर्म में. ये एक तरीके की रेशियो है जो हमने ली है. ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब इसको सिंबॉलिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? आई एम राइटिंग इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म फॉर फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. वही एक्सप्लेनेशन है, वही एग्जाम्पल है, उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है. ठीक है, हाउ वी राइट दिस? PED स्टैंड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड. डिमांड को जो है हम सिंबल से डिनोट करते हैं क्यू. क्यू स्टैंड्स फॉर योर क्वांटिटी डिमांड. तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू, एंड प्राइस को हम डिनोट करते हैं विद सिंबल P. सो डेल्टा P ओवर P. So it is represented symbolically in this form. Okay, delta Q over Q divided by delta P over P. अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. तो क्या बन जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q ओवर Q. इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ इनटू ये वाला P जो है उसको हम ऊपर ले जाते हैं इनटू P over delta P. We can write it in this form.
Okay, so what is P? P stands for your initial price and delta जो है वो change को represent करता है. So delta P stands for change in price. Okay, delta Q stands for change in quantity and Q stands for initial quantity. Okay, is it clear? Now I am taking one example illustration to explain you this formula. I am writing it again with the example, the illustration. Okay, suppose price or demand हमें given है. Price is 10, 5, okay, and demand is 20, 30. This is Q, this is Q1, this is P, this is P1. Okay, now I write the formula minus delta Q over Q into P over delta P. This was our formula. Okay, प्राइस हमारे पास 10 है, क्वांटिटी हमारे पास 20 है. ठीक है, डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 minus Q, Q1 minus Q, 30 minus 20 is equal to 10. इसी तरीके से डेल्टा P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 minus P, 5 minus 10 is equal to minus 5. So we will be putting these values here. Okay, but it becomes minus delta Q कितना है? 10 divided by Q, 20 into P हमारे पास है 10 divided by delta P, that is minus 5. Okay, अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका माइनस माइनस कट जाएगा. ओके, तो ये आपका जो है इट विल कम इज इक्वल टू 10 over 5 into 10 and 20, it comes is equal to 1. So we can say here that price elasticity of demand is equal to 1. अब ये 1 होती है, 0 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है. इसको हम अब स्टडी करेंगे यहाँ पर. ठीक है, in the next class. So thank you. That was all for today. In the next lecture we would be covering the further topic related to elasticity of demand.